just a minute. Okay. Just a minute, I'll just kindly give me a minute. Okay, so once I hope you are able to see the screen. Kindly reply on the chat box. Are you able to see the screen? So let us start with the basic of implant prosthetics. Yes. Basic implant prosthetics. So once you have placed the implant, and in the second stage, you again open the mucoperiosteal flap. Now this is the cover screw that we have placed in the first stage surgery, right? Now what we will do, we will open the mucoperiosteal flap. Now it's a prosthetic phase. We'll remove these cover screws you are seeing, and it will be replaced by a gingival former. अभी फोटो देख लो gingival former की. Now this gingival former is also known as your healing abutment or transmucosal abutment. ओके और इसके अराउंड फिर से हम म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप को सूचर कर देते हैं. वी लीव इट फॉर 7 to 10 days and then it is ready for the prosthetic phase for the impression. Now जिंजाइवल फॉर्मर बेसिकली क्यों लगाते हैं? ताकि एक जिंजाइवल कफ या जिंजाइवल कॉलर बन जाए. ठीक है, डिफरेंट हमारे. अब नाउ इफ यू कैन सी दीज आर दी abutments, the healing abutments or the gingival former that we have placed. Okay, and then when you remove this, you see beautiful gingival cuff around the implant. Now ये gingival cuff क्यों जरूरी है? Because it is the first line of defense for the bacteria to seep in. So that is why minimum 2 से 3 mm of gingival collar around the implant is very important. Right? So you can see, अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है, this is gingival collar height. तो हम क्या करते हैं? We will just take a periodontal probe और वहाँ मार्किंग होंगी. We will just place it on the superior margin of the implant और हम देख लेते हैं कि हमारी मीजियली, डिस्टली, बक्कली, पैलेटली कितनी जिंजाइवल मार्जिन. उसी हिसाब से हम अबटमेंट जब सिलेक्ट करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने जिंजाइवल कॉलर हाइट का अबटमेंट चाहिए. I hope it is clear. I will be speaking in English because there are many students who are from South and they have problem in understanding Hindi. So gingival collar height is made with the help of your gingival former or healing abutments, right? Then we are ready for the impression. It is not like a similar easy like your simple FPD impression where we just make the impression of the of the prepared teeth
there will be negative replica in the impression. Then we prepare a die to get the positive replica, and then we fabricate a crown. It's a very, very easy and a simple procedure. Now when we are talking about implant is being placed within the bone. That is why we say it is endoosseous. It's a hollow structure, so we cannot pour a material over it and can impress upon the implant and it will be coming in the impression. No, for this we require some armamentarium. For this we require some equipments. जो हमें equipment चाहिए, whatever equipment we need an impression coping that will be placed over the implant. I'll just show you the pictures. Okay, we need an implant analog that will go into the base of the cast. We need an impression tray, either it may be closed tray or it may be open tray, and a very good impression material. Remember, write it down, which is the best impression material for implants. It is polyether. Polyether is the best material. Why? Because it is one of the stiffest materials, one of the excellent materials that is almost comparable to polyvinyl siloxane material, but it is more stiffer. The components moving inside the impression while making the impression or while pouring the cast, they don't move because it is a very stiff material. So okay, now try to understand what I am saying. Okay, अब मैं बता रहा हूं आपको क्लोज ट्रे इंप्रेशन. ठीक, दो तरीके के इंप्रेशन होते हैं, याद रखना. एक होता है इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन, दूसरा होता है अबटमेंट लेवल. याद रखना क्या बोला मैंने. वन इज योर इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन एंड वन इज योर abutment level impression. Now the implant level impression is being divided into two. One is closed tray and one is open tray. Okay, abutment level में हम एक temporary abutment लगाते हैं. I'll show you, वो अलग है. तो now the first impression that I am teaching is a closed tray impression. This is the closed tray impression coping. We screw it over the implant. We make the impression. The negative replica is being produced in the impression. हम क्या करते हैं, उसके बाद कोपिंग को निकालते हैं, एनालॉग के साथ हम इसको जोड़ते हैं बाहर, और we place the coping back in the negative replica that has been impressed upon in the impression, and we pour it. जब हम pour करते हैं तो याद रखो कि इसके चारों तरफ, ताकि क्योंकि हम बार बार इसे खोलेंगे, बार बार कंपोनेंट लगाएंगे, तो इसके चारों तरफ एक विस्कोलास्टिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं जिंजी मास्क. दैट मिमिक्स द जिंजिवा. सॉफ्ट मटेरियल होता है, पहले इसके चारों तरफ लगाते हैं एट द जंक्शन, एंड देन वी पोर द कास्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट. अब क्या हमारा जो हमारा एनालॉग है वो हमारा चला गया बेस ऑफ द कास्ट में, कोपिंग हमारी ऊपर आ गई, हमने हटा दी. देन वी कैन प्लेस द अबटमेंट्स एंड वी कैन गो हेड विद द फैब्रिकेशन ऑफ द क्राउन. ओके, क्लियर? भावना क्लियर है? हु ऑल आर प्रेजेंट, काइंडली नाम बताइए. Kindly tell me your names. बेटा क्लियर है? भावना and other students, is it clear? Is it clear? फातिमा धनगोट, ओके ग्रेट. नाउ उसके बाद हमने वेरियस अबटमेंट्स, वी चूज वेरियस अबटमेंट्स एंड देन वी फैब्रिकेट अ क्राउन दैट मे बी स्क्रू रिटेन्ड और अ सीमेंट रिटेन्ड. ओके, बताऊंगा आपको उनकी क्या हमारी इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. आई विल टेल यू. ओके, ठीक है. अब जैसे मैंने बताया, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंप्रेशंस. वन इज योर बोन लेवल और इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन टेक्निक, एंड सेकंड इज योर अबटमेंट लेवल इंप्रेशन टेक्निक्स. तो जैसे मैंने बताया, ओके, सो दिस इज, अगर देखो आपको कभी क्वेश्चन आपको कभी आता है, फातिमा, भावना, बेटे, इफ यू सी
that I'm sorry, I have a very sore throat. I'll be sorry if there is some break for 1 minute. Okay. So if you see this, how to identify a short closed tray impression coping and a long open tray impression coping. Now if you see that nothing is projecting out of the impression coping, it is a short impression coping or a closed tray impression coping, pehli wali. If you see a long screw projecting out of the impression coping, it becomes a long tray. Remember this, right? Now I will also tell you these both are bone level or implant level impression techniques. Remember this, if you have a single implant or two parallel implants placed, you can make use of this closed tray impression technique. But if you have multiple implants, mal aligned implants, then definitely you have to go with the open tray impression techniques. Is it clear? Is it clear? Okay, so you can clearly see that there is no screw projecting out of this and there is a screw projecting out of it. It's a long screw, so it's a open tray. If there is no screw that is visible, it becomes a closed tray impression coping. Remember this, right? Ab now you only tell me what are these impression coping, open tray or long or closed tray. Now you can see long screws projecting out of the body, so it's a open tray or a long coping. Open tray impression coping used for multiple implants, so we can use long tray impression copings or a open tray impression coping, right? Clear? Yes, Fatima, Bhavna and others who are present. Now again I am showing you what is a closed tray impression coping. You see that I have placed a closed tray. Now beta isko bolte transfer type, इसको closed tray impression technique को we also say that it is a transfer type impression coping. Why? Because if you see that we have made the impression है, इसकी इंडेक्सिंग होती है जो यहाँ जाती है, इसको निकालते हैं एनालॉग के साथ, we just attach with the analog and then again we transfer it into the impression. That's why the closed tray impression coping is also called as transfer type impression coping. क्या बोलते हैं? Transfer type. Why? Because we are transferring it. We have to manually transfer it. Okay. Now, what things you have to keep in mind if question comes when you are making the impression? सारा खेल impression का है कि हमारी impression coping ठीक से बैठी है. हमें बेसिकली इम्प्लांट की 3D पोजीशन को रिकॉर्ड करना है इंप्रेशन कोपिंग से, कि जो हमारे पेशेंट के वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द पेशेंट्स माउथ वेयर इन 3 डायमेंशनल पोजीशन द इम्प्लांट इज प्रेजेंट इन द सेम पोजीशन आर जस्ट अ मिनट. Okay, so before making the impression, when you have placed the impression coping inside on the implant, then the first thing that we should do that, first of all, with the tactile sensation, you see that our coping is 100% seated or not. Now in the first x-ray you see that there is no space in the implant and the coping, so we always have to make an x-ray. You can see here the impression coping are not seated at all. So if they are not seated at all, so we have to see that they have to be first seated. Okay, they have to be first seated. Got it? Just a minute. ठीक है, तो
सबसे पहला काम है कि हमेशा एक्सरे से देखो कि इंप्रेशन कोपिंग नहीं बैठी है तो उसको बिठाओ, अगेन मेक एन एक्सरे. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point, that whenever we are going for the impression of the multiple implants, so these are the open tray impression coping. हम उन्हें splint करते हैं. It is very important. Why? Because we do not want our coping to move whenever we are making the impression. So what we do is we just splint them with the floss, and over the floss we add pattern resin to make a stiff splinting. Okay, and then we make a open tray impression. Okay, I'll show you how open tray. Now if you see this, kindly have a look the video. I'm not just have a look. I'm not a speaker for Alpha Bio. This is a disclosure. This is just for educational purpose. This is a closed tray impression, open tray impression, because long screw, we just place the light body around it, we close. हम ट्रे तोड़ रखी है, हमने ओपन कर रखी है, so it will project out. We just remove the screw, so it's a pickup type. Open tray coping is a pickup type. जैसे स्क्रू हटाया वो पिकअप हो गई. So यहाँ पे chances, again we will place back the screw, gingy mask, and then pouring the whole impression. Okay, just remove it. ये आ गया, आपका पिकअप हो गया बेटा. दिस इज ओके, क्लियर, क्लियर है. ओपन ट्रे इज क्लियर, ओपन ट्रे इज क्लियर. शैल आई स्टार्ट द वीडियो विद द shall I start the video with the closed tray, or do you want me to play the video again? Fatima, Bhavna, okay, I'll just play the video again. Just a minute. So again I am opening. See, this is the first is your open tray impression coping. देखो, first I will remove the gingival former, place the long screw impression coping. ये किया, एक्सरे लिया है और हमने स्क्रू बंद कर दिया. राइट, मेक दी एक्सरे. हमने ट्रे उस जगह से हमने ओपन कर रखी है. So it's a pickup type. Okay, I'll continue. Okay. Now after this, I will show you the closed tray. Now this is the closed tray where हमने gingival former remove किया. Then we place a closed tray impression coping. We just make an FPD-like impression. We will get the negative replica of the coping. Just make a normal impression. We will get the negative replica of the coping. We remove the coping now. This is a transfer type. We attach it with the analog, place it back in the impression. Attach with the analog. Place it back in the impression in the same indexing, and again we pour the cast and we get the cast once again. तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं which is more accurate, definitely your open tray impression coping, because it's a pickup type, it is more accurate. It is more accurate. Got it? Okay. Is it clear, Fatima, Bhavna, and other students? Okay. Now I am showing you the abutment level impression technique. In the abutment level,
वी विल प्लेस अ टेम्पररी अबटमेंट ओवर द इम्प्लांट. टेम्पररी अबटमेंट ये इंप्रेशन के लिए ही आता है अलग से, और उसके ऊपर एक स्नैप ऑन होती है प्लास्टिक की जो उस पर स्नगली फिट हो जाती है. फिर हम, यू सी दिस रिमूवल ऑफ द हीलिंग अबटमेंट. दिस इज अ एनाटॉमिक और द टेम्पररी अबटमेंट. देन वी प्लेस अ स्नैप ऑन. दिस इज अ, ये कैप होती है, ये जाके टक बैठ जाती है. अब इसके ऊपर हम इंप्रेशन लेते हैं तो ये पिकअप हो जाती है इन द इंप्रेशन. वी रिमूव द अबटमेंट, अटैच इट विद, यू कैन सी दिस. ओके, आई जस्ट, सो क्लियर है, भावना. आई जस्ट अगेन प्ले द वीडियो, डोंट वरी. देखो, so we remove the gingival abutment, gingival healing abutment remove किया. then we place an anatomic abutment, torque it and place a snap on. एक snap on प्लास्टिक की snap on होती है जो आके बैठ जाती है इंडेक्सिंग में, ठीक है. फ्लैट एरिया merge with the flat area. we place the light body, we make the impression. the snap on जो होती है प्लास्टिक वाली, जो उसके ऊपर टोपी होती है, वो पिकअप हो जाती है इंप्रेशन में, ठीक. फिर हम ये अबटमेंट को खोलेंगे एंड देन वी अटैच इट विद द एनालॉग एंड प्लेस इट बैक एज वी डू इन द क्लोज ट्रे इंप्रेशन कोपिंग एंड pour the cast. this is abutment level impression. I hope it is clear. both of the things are clear now clear है बेटा? should I, तो सीधी सी बात है, we can use abutment level, no problem. we can use closed tray impression coping, we can use open tray, whatever you want, ठीक है. एक और चीज़ होती है बेटा, लिख लो, एक और चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ. आजकल डिजिटल इम्प्रेशन, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिजिटल इम्प्रेशन में क्या यूज़ करते हो, तो अगर कोई पूछे आपसे, जैसे यहाँ तो हम इम्प्रेशन कोपिंग होती है, तो अगर हमें डिजिटल इम्प्रेशन लेना है विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर, तो वहाँ पे इसकी होती है स्कैन बॉडी. लिख लो बेटा. तो हम स्कैन बॉडी को इम्प्लांट में लगाते हैं, ठीक है. जैसे ये इम्प्लांट है, हमने ये स्कैन बॉडीज को लगाया एंड देन विद द हेल्प ऑफ इंट्रा ओरल स्कैनर वी स्कैन, हम स्कैन करते हैं, ठीक है. तो स्कैन करते हैं तो हर इम्प्लांट की एक स्कैन बॉडी की डिजिटल लाइब्रेरी होती है. हम लगा के स्कैन कर लिया, राइट. क्लियर है बेटा? क्लियर है. तो स्कैन कर लिया तो वो हमारे पास एक स्कैन पूरा बन गया, ठीक है. तो स्कैन बॉडी होगी जो हम फिजिकली स्कैन करते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारी डिजिटल लाइब्रेरी होती है, डिजिटल लाइब्रेरी. डिजिटल लाइब्रेरी में इस स्कैन बॉडी की ऑलरेडी कॉपी होती है, और जो हमारा एनालॉग जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, इसमें होता है डिजिटल एनालॉग. नॉर्मल एनालॉग से अलग. तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंप्रेशन के लिए, डिजिटल इंप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वी नीड अ स्कैन बॉडी एंड डिजिटल एनालॉग जो कास्ट में जाएगा, बस. वो नॉर्मल एनालॉग से अलग होता है. नॉर्मल स्कैन बॉडी इज डिफरेंट, ओके. वो हमारी उस लाइब्रेरी से पिकअप हो जाती है. बाकी हमारे पास फिजिकली भी तो होनी चाहिए. क्लियर है? क्लियर है. अब हाउ आर वी श्योर, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आर वी श्योर कि हमारा इंप्रेशन ठीक है कि नहीं है. क्या हमारा ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा कोई कंपोनेंट हिल गया हो? बिल्कुल है. तो जो वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द पेशेंट्स माउथ शुड बी प्रेजेंट इन द कास्ट टू हैव द सेम 3-dimensional पोजिशन. इफ यू हैव टू चेक इट, तो वॉट वी डू इज, हमें कास्ट मिल गई थी यहाँ पे, हम क्या करते हैं, इंप्रेशन कोपिंग लगी रही, और साथ वाले दांत, अब हमारे पास जो मुंह के अंदर एडजेसेंट टीथ है वो कास्ट पे भी प्रेजेंट है, और वो हमारे पास मुंह के अंदर भी प्रेजेंट है. तो एडजेसेंट मार्जिनल रिज पे हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हमने वी हैव प्लेस द इंप्रेशन कोपिंग, इट इज लाइक दिस ऑन द कास्ट,
वी जस्ट यू नो मेक अ जिग, इसको कहते हैं जिग, अ सीटिंग जिग, जो कि हमारे साथ वाले दांत के या तो मार्जिनल रिज या फोसा पे रेस्ट करती है. नाउ दिस हैज बीन मेड ऑन द कास्ट. अब अगर ये कास्ट पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब इम्प्लांट का इस दांत से रिलेशन एक कॉमन, इट इज अ, बेटा भावना डिजिटल लाइब्रेरी हर इम्प्लांट की हर लैब के पास वो पहले से ही फिक्स होती है ना. लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी मतलब जो हम डिजिटल काम करते हैं उसमें, क्योंकि अब हो सकता है भावना नीमा नोबल का इम्प्लांट कर रही है, डॉक्टर चेतन ऑस्टम कर रहे हैं, है ना, फातिमा बनोट स्ट्रोमन कर रही है, तो बेटा हर एक की वो चीज़ अलग अलग होगी. तो लैब के पास डिजिटल लाइब्रेरी होती है, उसमें सारी इनकी अलग अलग स्कैन बॉडी, क्योंकि सारे सिस्टम अलग है, तो उसमें से वो पिकअप कर लेते हैं. तो वो फॉर मेकिंग द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग दे कैन पिकअप दैट फ्रॉम डिजिटल लाइब्रेरी दैट इज प्रेजेंट ऑलरेडी विद द लैब. गॉट इट? ठीक है ना. अब हमारे पास जो लैब से आया, दिस इज द जिग ट्रायल. हमें इंप्रेशन की एक्यूरेसी देखनी है कि क्या हमारा इंप्रेशन ठीक है कि नहीं है. तो हम क्या करते हैं, वी मेक अ जिग ट्रायल ऑन द कास्ट. नाउ अब हमारा एज अ डेंटिस्ट वी हैव टू सी दैट इज द जिग ट्रायल दैट इज सीटिंग ऑन द एडजेसेंट टीथ, it has to sit exactly in the patient's mouth, and then we make an x-ray. We have to see both the things. One is the clinical seating. Clinical seating, we see that with the adjacent teeth it is seating exactly in the same way. There should not be any gap in the patient's mouth as it is present in the cast. जिग का एडजेसेंट टीथ से कोई गैप नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोई गैप नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम सीट करनी चाहिए. इफ इट इज नॉट सीटिंग, you have to repeat the impression. Very very important. I see many people you know doing shortcuts while impression making. Yes, your number of visits are increased, but then yes, if you are charging so much from the patient, if you are doing a lot of things, you have to do in a correct manner. Right? You have to make an x-ray. Okay, make an x-ray. It should be seated well in the implant. तो क्लिनिकल सीटिंग प्लस रेडियोग्राफिक सीटिंग बोथ यू हैव टू चेक. रेडियोग्राफिक सीटिंग इज व्हाट, योर इंप्रेशन कोपिंग शुड बी सीटेड परफेक्टली वेल इन द इम्प्लांट. क्लिनिकल सीटिंग इज व्हाट, योर जिग शुड बी एग्जैक्टली सीटेड एज इट वाज इन द कास्ट इन द पेशेंट्स माउथ. ठीक है. मल्टीपल इम्प्लांट्स के लिए ओके, हमने जिग बनाई इतने सारी, मान लो 6 इम्प्लांट है, ऐसे के ऐसे ही उठाएंगे, पेशेंट के मुंह के अंदर लगाएंगे. तो एज इट इज अगर नहीं जा रही है मान लो, और हमारा इंप्रेशन हमें लग रहा है गलत है, व्हाट वी डू इज हम उसमें दोबारा से वी सेपरेट द जिग्स इन द पेशेंट्स माउथ ओनली. हमने सेपरेट किया, लगाया, और इसको फिर से हमने वी जस्ट ऐड द मटेरियल एंड अगेन पिकअप इन द इंप्रेशन इन द ओपन ट्रे, एंड अगेन वी डू द जिग ट्रायल. गॉट इट? जिग ट्रायल इज ऑफ utmost importance. You cannot go ahead to jaw relation and to your bis trial and metal trial until or unless your jig trial is perfect. Remember this. There should not be any errors. I am again saying, in implantology, if there are errors in jig trial, kindly do not move ahead. Even if you have to repeat it, no problems. अब नाउ अबटमेंट सॉल्यूशंस, हमारे पास बहुत सारे अबटमेंट्स होते हैं. स्टॉक अबटमेंट्स होते हैं, स्ट्रेट अबटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंगल्ड होते हैं. एंगल्ड अगर मान लो आपका इम्प्लांट टेढ़ा डाला हुआ है तो वहाँ पे एंगल्ड अबटमेंट होते हैं. देन वी हैव कास्टेबल अबटमेंट्स या यूसीएलए. यूसीएलए इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, तो वो कास्टेबल अबटमेंट होते हैं. ठीक है. देन देर आर, ठीक है, तो दीज आर कस्टमाइज अबटमेंट्स डिपेंडिंग. We just make the impression and how much, and these are available from the company, implant company, and they will mill it according to the case. But still the video is not on.
Still the video. Is it okay? I hope it is fine now. Abbas bhai, it is fine. Shall I move ahead? It is fine. I think now the video is working. Okay, thank you. So we can use, these are castable abutments, these are multi units जहाँ पे स्ट्रेट आते हैं. तो ऑल ऑन फोर का बहुत आजकल कॉन्सेप्ट है, बहुत टिल्टेड हमारे इम्प्लांट्स डालते हैं, तो उनको कॉम्पनसेट, स्पेशली जाइगोमा इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड एट अ वेरी वेरी डिफरेंट एंगल. सो टू कॉम्पनसेट फॉर दैट वी हैव टू यूज दीज अबटमेंट्स. इनको बोलते हैं MUA. MUA मतलब मल्टी यूनिट अबटमेंट्स विच माइट बी स्ट्रेट एंड विच माइट बी एंगल्ड. आपको पता है इवन वी कैन कॉम्पनसेट द एंगल टिल 45 to 60 degrees nowadays. पहले ब्रेनमार्क का कंसेप्ट था प्लेस स्ट्रेट इम्प्लांट्स, बट देन विद पोलो मोलो एंड अदर people coming in, they say that place tilted implants, they have more BIC, okay, the bone implant contact to different protocols. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि these are the various treatment options that we have available, right? And then we have customized abutments. These are milled abutments by the lab. Milled abutments, वो मिल करता है, कैड कैम कट सारा मिल कर देता है उसको पेशेंट के हिसाब से. गॉट इट? Then I will tell you what. Then you should know the classification by Mission Judy. FP1, this is implant prosthesis. FP1, FP2, FP3, RP4, RP5. Do you know this or should I move ahead? Fatima, Bhavna, do you know this or should I move ahead? Should I explain this? Okay, I'll just explain it in a fast. FP1 का क्या मतलब है? FP1 का ये मतलब है कि आपने जो हमारा इम्प्लांट था, it is placed almost at the level of CEJ of the adjacent teeth, and then we replace the given teeth. You see that it is exactly of the same length at the adjacent teeth. कोई हाइपर इलोंगेशन इन द क्राउन नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि भाई आपने whatever you are placing, it is exactly at the same level. There is no resorption of the bone. तो उसमें क्या है कि उसमें हमारे एडजेसेंट टीथ से अगर कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल लग रहा है. ऐसी प्रोसेस को FP मतलब फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, तो ऐसी प्रोसेसिस को बोलते हैं FP1, फिक्स्ड प्रोस्थेसिस 1. गॉट इट? अब मान लो भाई साहब के भैया अगर हमारा रिजॉर्प्शन हो गई यहाँ पे, इफ देयर इज अ रिजॉर्प्शन एंड इफ now you see that comparing with the adjacent teeth, it is also replacing a bit of the root portion of the adjacent teeth. मतलब ये it is also replacing the root portion. तो it looks like a very very hyper elongated crown. पेशेंट हंसेगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. तो it is hyper elongated incisocoroneally, incisopically it is hyper elongated. बट हो सकता है पेशेंट की स्माइल लाइन बहुत लो हो, तो ऐसे में यू डोंट नीड टू ऐड अ जिंजाइवल सिरामिक. इफ द पेशेंट स्माइल लाइन इज हाई एंड देर इज इवन मोर रिजॉर्प्शन, तो वहां पे वी हैव टू इवन अपार्ट फ्रॉम रिप्लेसिंग द पेशेंट्स क्राउन पोर्शन, रूट पोर्शन, वी ऑल्सो माइट हैव टू रिप्लेस द कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारा. तो ऐसे में और पेशेंट की स्माइल लाइन भी हमारी बहुत हाई है, तो उसमें हमें ये जंक्शन दिखेगा. तो वी नीड टू यूज जिंजाइवल सिरामिक. सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन FP2 and FP3. इन FP2 द पेशेंट स्माइल लाइन इज लो, इवन इफ इट इज अ हाइपर लॉन्गेटेड क्राउन. बिकॉज पेशेंट का ये दिखेगा ही नहीं, ये एरिया सर्वाइकल एरिया दिखेगा ही नहीं. पेशेंट ऐसे मान लो इतना ही दिखता है, कितना भी हंस ले, तो वी डोंट नीड टू ऐड अ जिंजाइवल सिरामिक. तो
is FP2. But if we are adding gingival ceramic या composite, gingival composite, patient smile line is high, so we have to use, then the processes is a screw tint processes, so it will become an FP3 processes. Is it okay? Fixed processes की समझ में आई? समझ रहे हो? So it's a hybrid processes. FP3 of processes is normally a hybrid processes. अब hybrid processes याद रखो prosthodontics में whenever you hear the name about hybrid processes, it might be even a simple overdenture is also a hybrid processes, because any processes that is away from normal is a hybrid processes. जैसे overdenture is a hybrid processes, normal to support overdenture को भी हम hybrid processes बोल सकते हैं right? Extremely sorry. इम्प्लांट पे कर रहे हैं, अंदर मेटल का बार होगा, it is carrying the teeth and the composite segment or the gingival ceramic segment. Again it's a implant supported hybrid processes. Hybrid processes के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, रिमेंबर दिस, ठीक है? क्राउन हाइट स्पेस मैं बताऊंगा अभी आपको, क्लियर है? RP4, R मतलब रिमूवेबल. नाउ RP4 and RP5 आर द रिमूवेबल प्रोसेसेस. RP4 में आप देखो द नंबर ऑफ इम्प्लांट्स आर मोर. So RP4 is any removable prosthesis that is mainly supported by implants. That is mainly supported by implants. Why? Because you are placing more number of implants. मान लो 5 number of implant डाल दिया और you are giving an overdenture, it becomes RP4. RP5 is implant plus a soft tissue prosthesis plus soft tissue supported. Implant number of implant कम है, तो ये हमारा जब overdenture जब आप लगाएंगे तो it is taking support from implants as well as from the posterior soft tissue or the ridge. तो इसको बोलते हैं RP5. that is any overdenture implant supported that is taking support not only for the implants but also of the soft tissue or the हमारे ridges. Got it? Classification समझ में आ गई है? Any doubts? Any doubts in the classification? बोलो, अरे बोलो भाई. Okay. Cement retained versus screw retained. Now, if you see this, now what is cement retained, screw retained? You see that, बड़ा तीन तरीके की होती है processes. One is screw retained, one is cement retained, and third is screw cement, SCR, screw cement retained, right? तो पहली बता रहा हूं मैं, अगर आप यहां देखो, if you see this, it is cement retained prosthesis. आपने पेशेंट के मुंह के अंदर आपने अबटमेंट है and you have just blocked the abutment access with the help of your your plumber's tape or the PTFE tape, and then you just cement it as you cement in the FPD. But then the problem with cemented is that you require the principles will be same as that you follow in natural teeth. The principles of crown preparation, that means retention features, resistant form, वो सारी सेम फॉलो होंगी यहाँ पे. तो याद रखो सीमेंट रिटेंड आप तभी करोगे जब आपकी अबटमेंट की हाइट या स्पेस हमारी मिनिमम 5 mm हो. 5 mm होती है स्पेस हमारी, इंटरऑक्लूजल स्पेस 5 mm है, तो यू कैन डू अ सीमेंट रिटेंड प्रोस्थेसिस. लेकिन अगर 5 mm से कम है तो यू हैव टू गो विद अ स्क्रू रिटेंड प्रोस्थेसिस. व्हेन दी प्लम्बर्स टेप, बेटा नॉर्मल जो आपकी जो टेप आती है, दिखाया था, रुक जा, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम क्लिनिक, आई जस्ट शो यू. भावना नीमा, ये देख, मैं अपने क्लिनिक ही बैठा हूँ, वहीं से क्लास ले रहा हूँ, तो इट इज़ ईजी. सो आर यू एबल टू सी? ये प्लम्बर्स टेप है, नॉर्मल टेप है, ठीक है. ये PTFE टेप नॉर्मल, ये इफ यू सी दिस, राइट, नॉर्मल टेप है. मैं इसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, एंड जस्ट इसको मैं जस्ट पैक कर सकता हूँ अंदर अबटमेंट के, टू ब्लॉक दी होल, ठीक है. दिस इज अ प्लम्बर्स टेप, PTFE टेप नॉर्मल जो होती है हमारी, ठीक है. तो आई जस्ट शो यू, दिस इज अ टेप,
देख रही है, आर एबल टू सी सबको, राइट? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो स्क्रू रिटेन्ड तब करना है जब आपको एक तो इंटरऑक्यूलर स्पेस कम हो, राइट? सीमेंट टेंड डेफिनेटली हम देखो मेन सीमेंट रिटेन्ड में एक एडवांटेज है बस कि जब आपकी डिफरेंट आपकी बहुत ज़्यादा एंगुलेशन हो, इम्प्लांट की बहुत ज़्यादा एंगुलेशन हो, तो आपका स्क्रू रिटेन करना मुश्किल होता है। तो सीमेंट रिटेन आपको थोड़ा सा लीवे देता है कि आपके अगर इम्प्लांट टेढ़े मेढ़े डले हुए हैं लेकिन स्पेस ठीक है, तो यू कैन जस्ट बिकॉज द पाथ ऑफ इंसर्शन आपने पहले अबटमेंट आपने मिल करके पेशेंट के मुंह के अंदर लगाने हैं इन द सेम पोजीशन एज इन द पेशेंट्स कास्ट, एंड देन यू हैव टू सीमेंट इट, बट देन द अमाउंट ऑफ सीमेंट एक्सट्रूडिंग वो कम होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी, हाँ उसके ऊपर कॉम्पोजिट, परफेक्ट 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 बेटा, बिल्कुल सही। वी हैव टू रिमूव दी एक्सेस सीमेंट। अगर ये सीमेंट नहीं हटाया तो पेरी इम्प्लांटाइटिस होने का खतरा रहता है। द मेन प्रॉब्लम विद सीमेंट इन इट इज दैट अगर अंदर से स्क्रू लूज हुआ तो यू हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोसेस, यू हैव टू कट द प्रोसेसेस, देयर माइट बी डैमेज टू द अबटमेंट व्हेन यू आर कटिंग इट। तो स्क्रू रिटेन सबसे बड़ी एडवांटेज जो पूछी जाती है और जो मैं आपको क्लिनिकली बता रहा हूं, स्क्रू रिटेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिट्रीवेबिलिटी। राइट डाउन, रिट्रीवेबिलिटी। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर ये स्क्रू, देखो स्क्रू रिटेन का क्या मतलब है, अगर ट्रू स्क्रू रिटेन है तो आपका अबटमेंट कास्टेबल अबटमेंट में आपने अंदर मेटल का आपने कास्ट करा लिया, वो पूरा एक यूनिट हो गया, और उसके ऊपर आपने सिरामिक चढ़वा लिया, एंड देन दिस होल गोज इनसाइड द पेशेंट्स इम्प्लांट, एंड देन यू जस्ट टेक द स्क्रू फ्रॉम द टॉप और उसको हम प्री लोड दे देते हैं 25 का 30 का, दैट इज रिकमेंडेड बाय द इम्प्लांट कंपनी। एंड देन इसके अंदर फिर हम क्या डाल देते हैं, प्लम्बर स्टेप, और ऊपर कॉम्पोजिट से इसको कर देते हैं। एडवांटेज, कल मान लो अगर स्क्रू लूज हो गया, कोई दिक्कत हो गई, सिरामिक चिप ऑफ हो गया, यू कैन जस्ट रिमूव द कॉम्पोजिट, रिमूव द टेप, and can gain the access of the, you can just tighten the abutment and remove it without sacrificing the prosthesis। तो सबसे बड़ा एडवांटेज स्क्रू रिटेन का क्या है बेटा, रिट्रीवेबिलिटी। इंटरऑक्यूलर स्पेस कम हो तो कर सकते हो, बट द मेन डिसएडवांटेज स्क्रू रिटेन का क्या है, यू हैव टू बी केयरफुल दैट जब आप अबटमेंट की कास्टिंग कराते हो तो पैसिविटी ऑफ फिट नहीं आ पाती है, एंड दी पैसिविटी ऑफ फिट नहीं आ पा रही और आपने टाइट कर दिया आपने स्क्रू, तो सारा लोड स्क्रू पे आया था, तो स्क्रू टूट सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसिविटी ऑफ द इम्प्लांट प्रोस्थेसिस, जो हमारे इम्प्लांट के अंदर जा रही है वो पैसिवली सीट होनी चाहिए, मतलब एक्टिव नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर दिस, गॉट इट, इट शुड बी पैसिव, नॉट बी एक्टिव, ठीक है। और एक और चीज़ बताया था बेटा कि जो हम स्क्रू को जो हम टाइट करते हैं फॉर दी स्क्रू टेन प्रोसेसेस, उसका टर्म है दो, एक होते हैं प्री लोड, क्या कहते हैं उसको, कितना प्री लोड दिया, या इसको बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्सेस, कितनी क्लैंपिंग फोर्सेस दी। तो नैरो प्लेटफॉर्म डायमीटर को हम कम देते हैं, जो रेगुलर प्लेटफॉर्म 4 एंड अबव को हम ज़्यादा लोड देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 20 से 25 न्यूटन सेंटीमीटर प्री लोड देते हैं नैरो डायमीटर इम्प्लांट 3.5 3.75 तक, 4 एंड अबव को हम 30 तक, 25 से 30 तक दे सकते हैं। यस बेटा, ऑन द राइट साइड इट इज अ सीमेंटेड इन प्रोस्थेसिस, ठीक है। अब यही चीज जो हम पेशेंट के मुंह के अंदर कर रहे हैं सीमेंट रिटेन्ड, कैन वी डू इन द लैब। इफ वी डूइंग इन द लैब, आई एम सो सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी बेटा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भावना, अगर आप कन्वेंशनल स्क्रू रिटेन बनवाते तो उसमें होल नहीं होता था, लेकिन अब हम होल बनवा सकते हैं ऑन द ऑक्लूजल सरफेस। द प्रॉब्लम विद द स्क्रू रिटेन इज दैट, ये बेटा उसी का एडवांटेज है ना, दिस इज अ स्क्रू सीमेंट रिटेन, जो तीसरी वाली है ना बेटे, जो तीसरी वाली है ये वाली, दिस इज SCR, स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस। ये बेसिकली हम इसे जो we are cementing or we are putting a primer and then we are using an adhesive to put the crown in the lab, इसमें सीमेंट तो नहीं आया, तो ये पेशेंट के मुंह के अंदर हम इसे we are actually doing a screw retain, but in the lab it is actually cemented or luted upon the abutment। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोस्थेसिस,
ठीक है, तो इसमें होल होता ही होता है। तो अगर कन्वेंशनल बात करो, येस यू आर राइट, कन्वेंशनली सीमेंट रिटेंट में छेद नहीं होता, स्क्रू एक्सेस होल नहीं होता है, बट येस इन स्क्रू सीमेंट रिटेंट दैट इज diluted इन द लैब, तो इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि इट इज एक्टिंग क्लिनिकली इन द पेशेंट माउथ एट स्क्रू रिटेंट, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस हैज बीन ल्यूटेड इन द लैब। तो एक सीमेंट रिटेन प्रोस्थेसिस मुंह के अंदर, नाउ वी हैव टू जस्ट स्क्रू इट लाइक अ स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस। गॉट इट? क्लियर है फंडामेंटल? तो अगर आप देखो स्क्रू रिटेन की प्रॉब्लम क्या है कि उसकी ऑक्लूजल सरफेस की इंटेग्रिटी वो होती है, डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल सही है। सीमेंट रिटेन की ज़्यादा नहीं होती है। रिट्रीवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें डिफिकल्ट है। इसमें प्रॉब्लम होती है स्क्रू फैटीग ओवर टाइम, इसमें सीमेंट ओवरहैंग की प्रॉब्लम होती है। इट हैज़ टू बी डन इन केस ऑफ रिड्यूस्ड इंटरऑक्लूजल स्पेसेस। यहाँ पे इट कैन ओनली बी डन इफ देयर इज अ सफिशिएंट इंटरऑक्लूजल स्पेस। 5 mm से ज़्यादा सीमेंट रिटेन, 5 mm से कम स्क्रू रिटेन। गॉट इट? I just show you some pictures so that if it comes in the exam, just you can see these are, बेटा ये जो मैं दिखा रहा हूँ अंदर का ना, these all are hybrid processes, types of hybrid processes। बेटा आप देख के नहीं बता सकते, आप भावना आप देख के नहीं बता सकते बेटा ऐसे, क्योंकि आपका अबटमेंट तो ल्यूट कर दिया ना, फिर आपको क्या पता कि वो कास्टेड है कि वो तो आपने जो अबटमेंट दिया उस हिसाब से करते हैं आप। ट्रू सीमेंट, ट्रू स्क्रू रिटेन के लिए आपको कास्टेबल अबटमेंट देना है लैब को। तो वो क्या करती है, प्लास्टिक अबटमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है, उस पर वैक्स ऐड करती है और कास्टिंग कर देती है उसकी, और उसके ऊपर फिर आप सिरेमिक बिल्डअप करते हो, राइट। बट इन द स्क्रू सीमेंट रिटेन आपने ये लैब के अंदर बन रहा है, आपने अब जैसे नॉर्मल एफपीडी होता है वैसे ही बनाते हो और फिर उसको लैब में ल्यूट करते हो, और वो आपके पास दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, बट द मेथड ऑफ फैब्रिकेशन इज डिफरेंट। गॉट इट? बट अगेन अबटमेंट की हाइट मिनिमम 4 से 5 mm रहनी चाहिए। रिमेंबर दिस इवन इन स्क्रू सीमेंट रिटेन प्रोसेसेस। क्लियर? I'm really sorry, I'm not well, but ठीक है, no problems। You see a metal substructure, उसके ऊपर आपने बिल्डअप कर दिया, इट्स अ हाइब्रिड प्रोसेसेस। सबसे बढ़िया रहता है अगर आपको देखो, अगर आप पूरा बड़ी प्रोसेसेस कर रहे हैं, पूरी मेजरी आर्च कर रहे हैं, सो आजकल टाइटेनियम की मिलिंग हो जाती है ना, ये मिल्ड टाइटेनियम बार्स आते हैं, इसको फिर हम इसके ऊपर फिर हम वी कैन जस्ट बिल्ड अप दी कॉम्पोजिट और दी सेरामिक। मिल्ड प्रोसेसेस है, कास्टेड नहीं है टाइटेनियम की, तो इट इज़ वेरी वेरी पैसिव, वेरी वेरी पैसिव। नाउ दिस इज, ये क्या है बेटा, ये देख लो, दिस इज मालोज ब्रिज, फोटो ले लो इसकी। एडवांटेज, नाउ कंपेयर दिस, मैं बताता हूँ, अगर आप इससे कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये दिखा रहा हूँ, मान लो ये अगर सारे एक ही सिंगल ब्रिज है, राइट, एक टूटता है तो मुझे सारे निकालने पड़ेंगे, सारी प्रोसेसेस निकालनी पड़ेगी। मान लो एक में सिरामिक चिप ऑफ होता है, इसको क्लियर करने के लिए देयर इज अनदर प्रोसेसेस जो सिंगल क्राउन लगा सकते हैं आप। यू कैन सी दिस इज योर मिल्ड प्रोसेसेस, टाइटेनियम मिल्ड प्रोसेसेस, जहाँ पे आपने अबटमेंट की मिलिंग कर दी है पूरे एक ब्लॉक में, और उसके ऊपर हम इंडिविजुअल क्राउन्स कर सकते हैं। तो उसमें एडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल क्राउन जब आप करोगे, sorry, really sorry about that, if you are doing individual crowns, तो अगर एक क्राउन में दिक्कत आती है तो आपको दूसरे क्राउन को छूने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल एफपीडी सिंगल क्राउन करते हैं, इसको कहते हैं मालोज ब्रिज, मालोज ब्रिज। क्लियर है? आजकल कॉम्पोजिट हाइब्रिड प्रोसेसेस भी आ रहे, दिस इज ऑल कॉम्पोजिट टीथ, कॉम्पोजिट, ये सारे कर सकते हैं, अंदर मेटल का पूरा सबस्ट्रक्चर है। अगेन दिस इज अ हाइब्रिड प्रोसेसेस, स्क्रू रिटेन, दिस इज मालोज ब्रिज। देखो ये सब आपने क्या कर दिया, देख रहे हो, इंडिविजुअल अबटमेंट्स मिल्ड हो रखे हैं जैसे दांत की तरह, और इनके ऊपर इंडिविजुअल क्राउन आप सीमेंट कर सकते हो।
तो अगर इसमें दिक्कत आती है तो आपको यही काटो, यही दोबारा नॉर्मल इंप्रेशन लो एफपीडी टाइप्स। ये सारा स्क्रू हो रखा है बेटा इन द इम्प्लांट्स। क्लियर है? नाउ दिस इज मिल्ड zirconia with full contour, layered ceramic, सारा zirconia से मिल्ड है। क्लियर? देन आई थिंक आई विल टेक ओवरडेंचर्स इन द नेक्स्ट क्लास। जस्ट अभी देख लो, हमारा बॉल अटैचमेंट ओवरडेंचर हो सकता है, बार एंड क्लिप टाइप हो सकता है, लोकेटेड अटैचमेंट्स, ये एक बार क्वेश्चन आया था, दीज आर लोकेटेड अटैचमेंट्स एंड मैग्नेटिक अटैचमेंट्स, मैग्नेटिक अटैचमेंट्स, राइट? ठीक है। I think in my next class, before I go with the important points in FPD, I will show you first this overdentures, implant supported and everything. I will try to complete this in my next YouTube session. Okay. Till then, I hope you people have got some insight in the type of implant prosthesis. Okay. So I'll take your leave. I'm sorry I'm not well, but I've tried to teach you as much as possible. I hope it is clear. Any doubts? Bhavna, Yashika, Fatima? Any doubts? Kindly ask me right now. Still I have 5 minutes. Any doubts? Not getting any message, so I think let us wind up the session. Okay, and next time I will first I will show you these overdentures, and then I will take some important concepts in FPD, and that class is on 31st of this month, 8 p.m. so kindly stay tuned. I will show you I will send you the link. You will get the link. You can just directly attend the classes. I hope I have done some justice to my teachings, and I hope you study hard for your exam, for your PG curriculum. Remaining bone associated with implant papillary level of single teeth is denoted by but now this is a statement. I'm not able to get it. Kindly put this in the in form of a question or a concept. Fatima, can you please not able to understand this question? Remaining bone associated with implant papillary level, beta denoted by एक लैंडमार्क स्टडी की गई थी। ओके, तो वो ये कहते हैं कि अगर पेपिला बनना है तो द डिस्टेंस शुड नॉट बी फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्टल लेवल ऑफ द बोन एंड जहाँ तक पेपिला बनना है वो कभी भी 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 mm से ज़्यादा है तो वो पेपिला बनेगा ही नहीं वहाँ। रिमेंबर दिस। हम जैसे हम एक इम्प्लांट डालते हैं, साइड में हमारा दांत है, अगर वो पेपिला को फिल करना है बेटा, आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी, I'll definitely explain this, भावना, डोंट वरी। बेटा एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि एक बार क्वेश्चन आया, दीज आर टू बी ऑनेस्ट, ये बरेड, सेमी बरेड और सेमी इंटीग्रेटेड हाइड्रोक्सी, ये जो दीज एक्चुअली में अब ये these terms are not used. This is a very obsolete question, but still I will try to explain in the group. Okay, definitely I will take this question, don't worry, it will be answered very very shortly. Okay, got it? So thank you so much for this session. I'll take your leave, and don't worry Bhavna, ये आपके question बेटा I'll keep in mind and will definitely answer these questions. Okay, so thank you for the session. So let's meet for the next class. Thank you.